The Delhi budget for fiscal year 2025-26 today at rupees 1 lakh crore. The Delhi budget witnessed an uptick of 31.5% from the previous year. Gupta termed it as a historic budget, with the BJP government doubling capital expenditure to rupees 28,000 crores against AAP government's rupees 15,000 crores. Delivering on the crucial poll promise, Gupta announced an outlay of rupees 5,100 crores. She also has said that 50,000 CCTVs will be installed across Delhi for women's safety. Take a listen. सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ। All right, my colleague Mehendi joins us on the broadcast to give us more on this. Mehendi, if you could take our viewers to the key points of the Delhi budget 2025-26 that has just been, in fact, announced by the Delhi Chief Minister. Well, indeed, Savi, right now the Delhi Chief Minister Rekha Gupta is presenting the budget for financial year 25-26, and she has allotted rupees 500 crores for the Yamuna cleaning, and she said that with rupees 500 crores, 40 decentralized sewage plants will be developed so that any sewage water is not released into the Yamuna river. And not only this, while addressing and while giving the budget, CM also mentioned that how now the Yamuna is struggling with sewage and polluted water, and the BJP is committed to clean the river Yamuna. And apart from this, also at during the budget presentation, the Chief Minister has allocated rupees 500 crores for repair and upgradation of the sewage treatment plants, and also rupees 250 crores for replacement of old sewage lines. And she also added, that the Delhi government will install intelligent meters to, prevent water theft in Delhi. And as well as, Rekha Gupta stated that this year the Delhi government's budget is rupees 1 lakh crore, and said that this is a budget of transformation from a dire economy to Viksit Delhi. And addressing, the budget presentation, also CM Gupta stated that the Delhi government has allocated rupees 5,100 crores for the Mahila Samriddhi Yojana, and she also proposed that rupees 28,000 crores for capital expenditure in the national capital, and to develop infrastructure for better connectivity within, the NCR region. Rupees 1,000 crore was allocated. So yes, right now, CM is still presenting the budget, on the health scheme, the education schemes, and a lot more schemes that BJP talked about in their Sankalp Patra as well. Yes, Sabri. Mehendi, thank you so much for joining us and sharing all those details. Meanwhile, my colleague has spoken to several BJP leaders. Listen in. हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक अजय महावर जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये बजट रहने वाला है, क्योंकि इसे विकसित दिल्ली बजट कहा जा रहा है, तो क्या कुछ रहेगा इस बजट में? बहुत अच्छा बजट आने की मुझे उम्मीद है। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की है, हजारों लोगों से चर्चा की है, और दिल्ली के समग्र विकास के लिए और विकसित दिल्ली के भविष्य के लिए एक अच्छा समग्र सबका साथ सबका विकास वाला बजट होगा। सर, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है महिला समृद्धि योजना को लेकर कि 2500 रुपए का जो दावा किया गया था, वादा किया गया था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, वो तो 10 सालों में दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिए, खुद तो कुछ दिया नहीं। एक राज्य में वादा किया था 1,000 रुपया पर मंथ महिला सम्मान राशि देने के लिए पंजाब में, 3 साल हो गए उनकी सरकार को, दिया नहीं किसी को। हमने 6 राज्यों में कहा था और दिया, और 7वां राज्य दिल्ली होगा। चिंता ना करें, उनकी योजनाएं पुरानी सरकार की भी जारी रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेसिक नीड्स है दिल्ली की, उसको भी हम फुलफिल करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप
हम अपने विजन डॉक्यूमेंट को भी 5 साल में पूरी तरह से लागू करेंगे। सर बस आखिरी सवाल, एक और सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया गया है और कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है बजट पेश करने से पहले, जो कि नियम का एक बड़ा उल्लंघन है बीजेपी की तरफ। नियम का कोई उल्लंघन नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत सरकारों ने नहीं किया, शीला दीक्षित ने 15 साल में 4 बार नहीं किया। और मुझे लगता है कि CAG की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो भ्रष्टाचार अनियमितताएं आ रही हैं उससे भागने के लिए वो इस प्रकार के सवाल उठा करके उसके पीछे छिपना चाहते हैं। यही उद्देश्य है उनका। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडियन न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली के लिए आज जो ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 26 साल बाद बीजेपी बजट पेश करने जा रही है। बातचीत करने के लिए विधायक शिखा रॉय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, इस बजट से क्या उम्मीद लगाकर रखे दिल्ली की जनता, क्योंकि कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से वादे बहुत किए गए हैं, चाहे वो महिला समृद्धि योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, तो क्या उम्मीदें हैं? बहुत मुझे लगता है ऐतिहासिक बजट रहने वाला है। जो उम्मीदें आशाएं दिल्ली की जनता ने बांधी हैं, मुझे लगता है कि कुछ उसमें पूरा होने की पूरी उम्मीद है। 5 साल की सरकार है, वैसे तो काम धीरे धीरे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार में ही बहुत सब फ्रंट्स पे बहुत सारे कामों को टेकअप किया जा रहा है। तो जो जिन उम्मीदों को उन्होंने हमसे बांधा है उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश होगी इस बजट के माध्यम से। मैम, एक आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर विपक्ष की तरफ से महिला सम्मान योजना को लेकर कि 8 मार्च को जो वादा किया गया था, तो अब तक पैसे 2500 रुपए का जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, ये एक विपक्ष का एक नौटंकी ड्रामा खेलने की बात होती है। उनको भी मालूम है कि योजना बनती है तो योजना के स्कीम, देखिए यही फर्क है। वो जब कुछ भी करते थे ना, वो फ्री बांटने की बात करते थे, जिसमें ना कोई योजना होती थी, ना बजट अप्रूवल होती थी, ना कैबिनेट डिसीजन होता था और ना उसके नियम होते थे। तो अब चूंकि हमने इसको, कोई ये नहीं है कि आज ये शुरू होगी तो कल ये बंद होने वाली चीज़ है। इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन उन बहनों के लिए जिनको ज़रूरत है ये दिया जाएगा। तो उसके लिए निश्चित रूप से जो स्कीम आएगी उसमें आप देखिएगा कि ज़रूरतमंद को पूरा लाभ पहुंचेगा और बहुत जल्द होगा। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। दिल्ली का आज बजट पेश होने जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये जो बजट है बीजेपी का वो अलग रहेगा दिल्ली के लिए, क्योंकि विकसित दिल्ली नाम दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों से कितना अलग रहेगा? देखिए, दिल्ली का ये बजट आ रहा है और ये पहली बार ऐसा बजट आ रहा है जब मुख्यमंत्री जी ने आम वर्गों के साथ डिस्कस करके उनसे सजेशंस लेके एक लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके बजट बनाया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से अब बजट आएगा तो तभी पता लगेगा, लेकिन लगता है मुझे दिल्ली के विकास के को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली का ये बजट वो प्रस्तुत करेंगे। सर, एक बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है महिला समृद्धि योजना को लेकर कि अब तक 2500 रुपया नहीं दिया गया। देखिए, प्रॉब्लम विपक्ष की ये है कि वो अभी तक जो है इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं कि वो हारे कैसे। तो अभी 1.5 महीना सरकार को आए हुए नहीं है, बजट आ जाएगा, इसके बाद असली में सरकार के कार्य शुरू होंगे। जल्दबाजी में है वो। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। सर, किस तरीके से ये बजट रहेगा, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें लगाकर दिल्ली की जनता फिलहाल बैठी हुई है? माननीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक बजट आने वाला है। दिल्ली का पहला ऐसा बजट होगा जिसमें हर वर्गों का ध्यान रखा गया है। माननीय मोदी जी का जो सपना है, जो विकसित दिल्ली को लेकर हम सभी विधायक चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने के लिए हम पूरा रात दिन एक कर रहे हैं। सर, किस तरीके से ये बजट अलग रहेगा आम आदमी पार्टी से? ये बजट बिल्कुल ही अलग रहेगा। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे, पेपरलेस बजट है और सब 27 साल बाद ऐसा कोई बजट आएगा जिसमें लोगों को गर्व होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।